So we have done the comparison between Tappet, Dobby, and Jacquard shading mechanism with reference to different points like number of picks per repeat possible in the design, number of hill frames which is required for a particular design, construction part of the mechanism, maintenance and maintenance cost, quality of the fabric which is produced on that particular loom with particular shading mechanism, and loom speed, and pattern changes, frequent pattern changes. So on the basis of all these points, we have compared these three shading mechanisms. And if we see, or if we observe or we analyze, which one is better according to you? Any student? Which one is better among these three? जो भी आपको आता है वैसा आंसर करें. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ करेक्ट आंसर एवरी टाइम. अभी जितना मैंने पढ़ाया उससे जो समझ में आया. सर अगर प्लेन फैब्रिक बनाना है तो टैपेट सही है, और ज्यादा डिजाइन वाला बनाना है तो जैकार्ड सही है. यस, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो जैकार्ड और डॉबी जो हैं दे आर यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक यूजेज ओनली. बट अगर वैसा नहीं है, हमें वो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वी शुड गो फॉर टैपेट शेडिंग मैकेनिज्म. यही आप कहना चाह रहे थे? यस सर. या, दैट इज करेक्ट. Because whenever we are going for Dobby or Jacquard, it means we have a particular requirement, then only we will go for that. Otherwise, we will prefer Tappet. If the design size means number of picks and number of hill frames are within the limit of this, and we have not to do frequent pattern changes, then we will go for Tappet. But whenever we have to do frequent pattern changes, even the design size is lesser within the limit of Tappet, it is less than 10 or 8. Still we will go for Dobby, because the pattern changes, frequent pattern changes is very easy in case of Dobby, which is not possible in case of Tappet. So we will go for, in that case, we will go for Dobby. But when our design is beyond the limit of Tappet, we will go for Dobby. And if it is beyond the limit of Dobby, we have to go for Jacquard. However, we have less advantage, or we have less production, or there may be some chances of defects is more, maintenance or maintenance cost is more. Still we have to go for that. We do not have any option for that. It's simple, like when you have to travel, or when आपको कहीं जाना है, and when you are two, you can go by your bike or your scooty. Even up to 3, you generally used to go with the same scooty or same bike. But if you have the option of car, and you are 3 persons, so you are 4 persons or 5 persons, then naturally you have to go for car. However, it is costlier. It requires more maintenance. It requires more maintenance cost. More consumption of fuel is there. Still, we have to go for that. Similarly, here we have to go for if the design size is larger than the limit of Tappet and Dobby, we have to go for Jacquard. So, correct answer. Next is, now we are taking first type of Tappet shading mechanism, that is Tappet shading mechanism. And what the principle we are following in Tappet shading mechanism, that we are trying to understand here. The principle of Tappet shading motion consists in using a tappet which strikes upon an anti-friction roller or bowl supported in a treadle, the heel shaft being directly or indirectly connected to the treadle from which it is operated. So very important parts we have covered in these 3-4 lines, which is describing principle of tappet shading. ये basic principle हम ले रहे हैं. Tappet shading में क्या होता है? Tappets होते हैं. जितनी आपको hill frames operate करनी है, उतने tappets होते हैं. Like for plain view, we have to operate, we require only 2 hill frames. So for that, we will require 2 tappets. And that is the simplest type of design we can produce with the help of tappet. So 2 tappet होंगे उसमें, और ये tappet strike करेंगे, एंटी फ्रिक्शन बॉल होगी या एंटी फ्रिक्शन रोलर बोलेंगे उसको हम, तो 2 एंटी फ्रिक्शन बॉल होगी. एक tappet के साथ एक एंटी फ्रिक्शन बॉल.
तो एक पर स्ट्राइक करेगा, दूसरा दूसरे पे स्ट्राइक करेगा। और ये जो एंटी फ्रिक्शन बॉल्स होती हैं वो ट्रेडल के ऊपर सपोर्टेड होती है, यानी कि ट्रेडल के ऊपर उसको हम माउंट करते हैं। ट्रेडल यानी कि लीवर्स होते हैं। तो दो अगर हिल फ्रेम है तो 2 टैपेट्स यूज कर रहे हैं, उसके लिए 2 बाउल्स होगी और वो दोनों बाउल एक एक ट्रेडल के ऊपर माउंटेड होगी। The heel shaft being directly or indirectly connected to the treadle from which is operated. और जो हिल शाफ्ट हैं उनको हम ट्रेडल से कनेक्ट करके रखेंगे, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। तो हम ट्रेडल को मूवमेंट देंगे तो हिल फ्रेम्स को मूवमेंट मिलेगा। ट्रेडल को मूवमेंट क्यों मिलेगा? क्योंकि ट्रेडल के ऊपर हमने बाउल या एंटी फ्रिक्शन रोलर फिक्स कर रखे हैं और एंटी फ्रिक्शन रोलर के ऊपर टैपेट से स्ट्राइक करते हैं। तो टैपेट के स्ट्राइक करने से एंटी फ्रिक्शन बॉल प्रेस होगी और एंटी फ्रिक्शन बॉल अगर प्रेस होगी तो जो जिस ट्रेडल पे वो लगी हुई वो ट्रेडल प्रेस होगा और वो ट्रेडल अगर प्रेस होगा तो क्या होगा? हील शाफ्ट नीचे की तरफ मूव करेगी। दैट इज बेसिक प्रिंसिपल। वी विल टेक डिटेल ऑफ दिस। बेसिक प्रिंसिपल समझ में आया आप लोगों को? बेसिकली इन टैपेट शेडिंग मैकेनिज्म द इंपॉर्टेंट पार्ट्स आर टैपेट्स, एंटी फ्रिक्शन बाउल्स, ट्रेडल्स and then heel frames. Now scope of tappet shedding. Tappet shedding का scope क्या है? The tappet shedding uses tappets and cams to control the up and down movement of heel shafts. Heel shafts के up and down movement को control करने के लिए tappet shedding mechanism में हम tappets use करते हैं. That should be clear. और इसीलिए हम इसको tappet shedding mechanism बोल रहे हैं. The tappet shedding is the simplest shedding motion. सबसे जो important quality है इस mechanism की, ये सबसे simple type का mechanism है if you compare with Dobie and Jacquard, other shedding mechanisms. Tappet shedding can control up to 8 to 10 heel shafts only. ये हम already comparison में ले चुके हैं, but this again we are covering with tappet shedding. So 8 to 10 heel shafts ले सकते हैं, इसका मतलब we can produce a fabric with plain weave, simple twill, simple satin and satin weave. ये इस तरह की जो simple designs है, basic designs हैं, these can be produced by using tappet shedding mechanism. And tappet shedding is the least versatile shedding motion. इसकी जो है जो versatility है वो सबसे कम होगी as far as designs are concerned. Frequent pattern changes are concerned. तो इसकी versatility कम होगी जो कि डॉबी और जैकार्ड में easy है. These are the almost similar points which we have covered in comparison. Tappet shedding is of 2 types. Tappet shedding 2 तरह की होती है. One is known as the negative shedding and another is known as positive shedding. Negative tappet shedding हम किसे कहते हैं? In this type of shedding, the heel shaft is either raised or lowered by the tappet. That is, tappet is responsible for only one motion. या तो heel shaft को हम lift कर लेंगे या हम उसको lower करेंगे. Lift किया तो lower हम नहीं करेंगे, mechanism से नहीं करेंगे. There will be some another device which will do the other type of movement. एक motion या एक movement अगर हो रहा है कि केवल lower कर रहे हैं या केवल raise कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव टैपेट शेडिंग. और पॉजिटिव जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा. अगर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट जो हिल फ्रेम का है वो अगर पॉजिटिवली किया जाए, दोनों को पॉजिटिवली कंट्रोल किया जाए तो हम उसको पॉजिटिव टैपेट शेडिंग बोलेंगे. बट इन आवर कोर्स वी आर जस्ट कवरिंग नेगेटिव टैपेट शेडिंग मैकेनिज्म. सो आई थिंक दिस इज क्लियर. कैन वी मूव फॉरवर्ड? आगे बढ़े? Yes, sir. Okay. Here we have shown a diagram which is indicating a very simple diagram which is indicating tappet shedding mechanism and how it works and what are the किस तरह से ये construct हो रहा है. The way it is constructed is shown in this diagram. Important parts we have shown here. तो पहले आप फोकस करें यहाँ पर. Here, this is C. C is indicating a bottom shaft. C जो लेटर है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? बॉटम शाफ्ट. जो बीच में बहुत छोटा सा एक सर्कल बना रखा है,
जो कि अंदर से फिलअप किया हुआ है, दिस सर्कल इज इंडिकेटिंग बॉटम शाफ्ट। वी ऑलरेडी टेकन 2 इंपॉर्टेंट शाफ्ट्स ऑन लूम। कौन कौन सी शाफ्ट्स होती लूम पर? क्रैंक शाफ्ट और बॉटम शाफ्ट, टापेट शाफ्ट। थोड़ा मेरा जो प्रीवियस जो भी मैंने पढ़ाया है वो मैं जैसी क्लास खत्म होती है, ऑन द सेम डे आई जनरली यूज टू अपलोड द वीडियो ऑन द MLVTC ई कंटेंट। तो आप उस पर जाकर के एक बार उसको रिवाइज कर लें, 15-20-25 मिनट का वीडियो होता है, एक बार देख लें और जो भी डाउट्स हो उसको नोट कर लें। तो पहले का आप अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा क्लास में ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा एंड इट विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग। एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट कि मैंने आपको कितना पढ़ा दिया, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आपने कितना समझा है और आपने कितना लर्न किया है। लर्न करना तो चलो फिर आप बाद में करते हैं, बट कितना आप समझ पाए हैं और समझने से कितना लर्न हुआ है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। जितना आपने समझ के जितना लर्न कर लिया, उसमें चाहे ऐसा नहीं कि आप एज इट इज आपको याद हो, बट बेसिक कंसेप्ट आपको याद रहते हैं अगर आप उसको समझ जाते हैं तो। सो 2 types of shafts are there and I expect answers from regular students also. I don't know in this group who are the regular students, who are not who are diploma students. वो डिफरेंस करना मेरे लिए मुश्किल है, बट रेगुलर स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि दे शुड ट्राई मोर पार्टिसिपेशन, ज़्यादा पार्टिसिपेशन के लिए ट्राई करें एंड डोंट हेजिटेट कि मेरा आंसर गलत होगा। इट्स अ फैमिली, योर फ्रेंड्स आर देयर एंड आई एम अलोन from which is not from your friend side, but I'm also your senior and your teacher, so don't hesitate, and I'm not expecting correct answers from you. I'm expecting only answers from you कि आप क्लास में बोलें, आपकी प्रेजेंस दर्ज करें कि आप क्लास में हैं and you are willing to participate in the class, you are willing to learn in the class. That is the most important thing in any class. Otherwise it is, if it is a dialogue, then it is better class, and if it is a monologue, then it's like a कथा, आशाराम जी की कथा की तरह है, सुन लिया, बीच बीच में अगर मैंने ज्यादा पूछा तो किसी ने हाँ कर दिया, ना कर दिया। Only 2-3 students are mostly participating, but most of the students are keeping mum, but it is not the place कि आपको यहाँ पर मौन रखना है, मौन की यहाँ पर जरूरत नहीं है। Yes, in between class जब आपको कुछ पूछना नहीं है या कुछ बताना नहीं है तो आपको मौन रहना है, यानी कि आपको म्यूटेड रहना है, right? So here is the bottom shaft. 2 shafts are there, जो हमने arrangements of shaft का डायग्राम भी लिया था, और बॉटम शाफ्ट को मोशन मिलता है क्रैंक शाफ्ट से, ये गियर के थ्रू कनेक्टेड होती है, और क्रैंक शाफ्ट को मोशन मिलता है मोटर से विद द हेल्प ऑफ मोटर पुली एंड मशीन पुली, राइट? सो बॉटम शाफ्ट को जो भी मोशन मिलना है, यहाँ पे बॉटम शाफ्ट रिवॉल्व कर रही है, और इस बॉटम शाफ्ट पर ये 2 पार्ट्स हमने फिक्स कर रखे हैं, दीज आर नोन एज टैपेट्स। ये जो शेप आपको दिख रहा है इस तरह के टैपेट्स होते हैं, और टैपेट्स का शेप डिफरेंट होगा डिफरेंट डिजाइन्स के लिए। These tappets are used for plain view only, which is repeating on 2 ends and 2 picks. 2 picks का डिजाइन और 2 ends का डिजाइन होता है, जिसको बहुत सिंपल डिजाइन है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला डिजाइन है प्लेन व्यू, जो कि आप सबको पता है। आप जो कॉलेज यूनिफॉर्म पहनते हैं उसमें जो व्यू यूज हुआ है, पैंट और शर्ट या जो सलवार या जो भी आप पहनते हैं, उसमें जो व्यू यूज हुआ दैट इज प्लेन व्यू। जनरली कुछ स्टूडेंट्स ट्विल फैब्रिक भी ले लेते हैं, but generally we use plain fabric for your uniform. So वो जो बनता है प्लेन व्यू से बनता है, उस प्लेन व्यू के लिए 2 टैपेट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्लेन व्यू 2 शाफ्ट, प्लेन व्यू रिक्वायर्स ओनली 2 हिल फ्रेम्स। और अभी हम इसको डायग्राम को सिंपल करने के लिए, समझने के लिए 2 हिल फ्रेम ले रहे हैं। वी आर टेकिंग ओनली 2 हिल फ्रेम्स एंड दैट इज फॉर प्लेन व्यू। सो फॉर 2 हिल फ्रेम्स, ये दोनों हिल फ्रेम यहाँ शो हो रही है, फॉर 2 हिल फ्रेम्स वी आर यूजिंग 2 टैपेट्स हियर। So they are mounted on bottom shaft, they are fixed on bottom shaft. 2 टैपेट्स अगर ज्यादा होंगे तो हमें फिर टैपेट शाफ्ट लेना पड़ेगा। ये मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया था जब अरेंजमेंट ऑफ शाफ्ट्स मैंने आपको बताया था कि एक एक्स्ट्रा शाफ्ट हम लगाते हैं जो कि जिसको मूवमेंट मिलता है बॉटम शाफ्ट से। वो कब जरूरत पड़ती है? जब 2 पिक से ज्यादा की डिजाइन होगी। अगर 2 पिक तक का डिजाइन है, द डिजाइंस व्हिच आर रिपीटिंग ओनली ऑन 2 पिक्स लाइक योर प्लेन व्यू और वेफ्ट रिब, ये 2 पिक्स पे बन सकती हैं। तो 2 पिक तक हम केवल 2 टैपेट ही यूज करते हैं, एंड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन हिल फ्रेम्स ऑल्सो, नॉट ओनली
picks. It is depending on hill frames also. So whenever we require 2 picks and 2 hill frames, we are using 2 tappets. And अगर 2 tappet use कर रहे हैं, they can be mounted on bottom shaft itself. फिर हमें दूसरी shaft की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि bottom shaft के एक revolution में कितने पिक इंसर्ट होते हैं? How many picks are inserted in one revolution of bottom shaft? किसी ने ध्यान नहीं दिया? पिछली क्लासेस में मैंने बताया था. In one revolution of crankshaft, 1 pick is inserted. And in one revolution of bottom shaft, 2 picks are inserted. इसलिए 2 picks की डिजाइन और 2 हिल फ्रेम की डिजाइन है, तो हम दोनों टैपेट को बॉटम शाफ्ट पे भी माउंट कर देते हैं. अब आप देखें, ये तो हो गया बॉटम शाफ्ट के ऊपर 2 टैपेट्स. अब आप इस नीचे वाले टैपेट को देखें, ये इसकी जो पेरिफेरी है, इस तरह की पेरिफेरी होती है, इसका शेप इस तरह का होता है. एंड देयर इज स्पेशल पर्पस टू कंस्ट्रक्ट दिस शेप, दिस टाइप ऑफ शेप. सो here is one anti-friction ball is shown, and this anti-friction ball is fixed on this fulcrum, this treadle. This is treadle and this is also treadle. 2 treadles, 1 bottom shaft. Bottom shaft के ऊपर 2 tappets. 2 tappets है तो 2 anti-friction ball होंगे. एक इसकी कॉन्टैक्ट में है जो कि इस treadle पे लगा हुआ है, और एक इस treadle के ऊपर और दूसरा लगा हुआ है, ये anti-friction ball. तो दूसरा tappet इसके कॉन्टैक्ट में है, यानी कि दोनों टैपेट एक एक एंटी फ्रिक्शन बॉल के कांटेक्ट में है, और एक एंटी फ्रिक्शन बॉल एक एक ट्रेडल के ऊपर लगा हुआ है. गेटिंग दिस पॉइंट? ये असेंबली, ये पार्ट्स आपको क्लियर हो रहा है. एंड दीज 2 ट्रेडल्स आर फलक्रम्ड हियर. ये दोनों ट्रेडल जो है यहाँ फलक्रम है. फलक्रम का मतलब, जैसे हम ये कोहनी को फलक्रम माने तो वी कैन मूव द हैंड लाइक दिस, फॉरवर्ड, बैकवर्ड या अपवर्ड, डाउनवर्ड, एंड दिस बिकम्स फलक्रम विच इज फिक्स, और इसके रेफरेंस में ये मूव कर रहा है. तो ऐसे ट्रेडल मूव करते हैं, तो इट इज फलक्रम ऑफ दीज 2 ट्रेडल्स. सो फलक्रम्स कैन मूव डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड विद रेफरेंस टू दिस फलक्रम विच इज फिक्स्ड ऑन लूम फ्रेम, जो कि लूम फ्रेम के ऊपर फिक्स होगा. तो लूम फ्रेम पर 2 ट्रेडल्स फिक्स हैं, एंड दे आर फलक्रम्ड हियर एट F, एंड ऑन दीज 2 ट्रेडल्स वी आर फिक्सिंग 2 एंटी फ्रिक्शन बॉल, 1 एंटी फ्रिक्शन बॉल ऑन 1 ट्रेडल. और ये जो एंटी फ्रिक्शन बॉल है, दे आर ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद पेरिफेरी ऑफ टैपेट्स. टैपेट की पेरिफेरी के हमेशा कॉन्टैक्ट में रहेंगे. ये जो एंटी फ्रिक्शन बॉल है, ये कॉन्टैक्ट में है इस वाले टैपेट से, ए को ए से जिसको हमने इंडिकेट किया है, और जिसको हमने बी से इंडिकेट किया है, उसके कॉन्टैक्ट में ये एंटी फ्रिक्शन बॉल है, जिसको हमने एस से शो किया और इसको हमने आर से शो किया है. एंड हियर आर द 2 treadles. One we have indicated by D, one we have indicated by E, and this is fulcrum point of these 2 treadles that is indicated by F. That much is clear. ये यहाँ तक सबको समझ में आया है? Bottom shaft, tappets, anti friction ball and treadles. Yes, sir. Okay, Sobit. Any other student? Sobit is from diploma or non-diploma? Diploma, sir. Diploma. So non-diploma students कितने हैं अभी क्लास के अंदर? Non-diploma students, can you tell me your names who are present in the class? जो non-diploma students हैं, वो एक बार अपना नाम बताएं. Sir, Parth Trivedi. Yeah, Parth is always there. Parth is a sincere student. Any other? Parth, नोट करना अभी अटेंडेंस में किस किस की शो हो रही है? सर राहुल शर्मा. राहुल, गुड. तो राहुल, इतना क्यों बोलने में शर्मा रहे हो? गर्ल्स आर देयर इन द ग्रुप? गर्ल्स ग्रुप में है इसलिए? राहुल बेटा अपना हेजिटेशन ब्रेक करके ट्राई टू पार्टिसिपेट इन द क्लास, है ना? चाहे गलत बोलो, सलत बोलो, जो बोलना जैसा बोलो, है ना? Okay, sir. And remain regular in the class, Rahul. I'm trying to make the classes more interesting, and if there is something which I can improve, you can suggest me, but try to be regular, because these topics requires little bit explanation.
तो आप अब बाद में समझेंगे, आप सोचेंगे मैं वीडियो देख के समझूंगा या मैं बुक से समझ लूंगा, दैट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू। एंड पार्थ के बाद राहुल और कौन है? ओनली 2 रेगुलर स्टूडेंट्स आर देयर। पार्थ सर और है रेगुलर स्टूडेंट, बोल नहीं रहे। इसका मतलब उन्होंने केवल अपना ऑन कर रखा है। हेलो सर। देयर यस सर। कौन बोल रहे हैं? राहुल कुमार। हाँ राहुल, आप तो आप ही तो बोल रहे थे पहले, राहुल 2 हैं क्या? यस सर। अच्छा 2 राहुल हैं, ओके। वन इज राहुल कुमावत, दूसरा कौन है? राहुल शर्मा सर। ओके शर्मा। ओके ओके। सो वी हैव 2 राहुल। राहुल कम्स फ्रॉम राहु। पता तुम्हें राहुल कहाँ से आया वर्ड? व्हाट डू यू मीन बाय राहुल? नो सर। राहु और केतु होते हैं ना? यस सर। है ना, यू आर वन ऑफ देम राहुल। जस्ट मजाक कर रहा हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज, जस्ट फॉर जोक आई एम टेलिंग दिस। हाँ 3 स्टूडेंट हो गए, और चौथा कौन है रेगुलर में? सर बड़ा रवि। सर रवि। दर्शन देवे। कोई बड़ा इनविटेशन के बाद बोल रहे हैं आप लोग। रवि के बाद और कौन है? दर्शन देवे। दर्शन सर दर्शन दर्शन देवे। दर्शन दे दिया करो। गुड, 5 हो गए। 5 ही हैं बस, और कोई है? सर माधव। माधव, वेरी गुड। सर 6 अभिषेक। और अभिषेक। ए फॉर अभिषेक। एनीवे चलो ठीक है। तो जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स, राहुल, रवि, अभिषेक, व्हाटएवर इट इज, आपको ये समझ में आया क्या? ये जो लोअर पार्ट मैंने समझाया इस मैकेनिज्म का, समझ में आया? दर्शन दवे, यस सर। समझ में आया ये वाला? यस सर, थोड़ा बहुत। जितना आया उतना एक बार समझाओ मेरे को, जितना भी आया, नो इश्यू, बिना हेजिटेशन के। जो आया समझ में समझा दो, तुम्हें जैसा आया वैसे। सर एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा था तो कोई लेट बात ज्वाइन नहीं, किया तो कोई बात नहीं नहीं, क्या समझ, कोई बात नहीं। और इस सर। तरह की चीजें करने की जरूरत नहीं है। यू आर फ्री, वेन एवर यू वॉन्ट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन। मेरा कोई फोर्स नहीं है। इफ यू वॉन्ट टू लर्न यू हैव टू ज्वाइन। और नेटवर्क इश्यूज हैं नो डाउट, मेरी तरफ भी होते हैं, तो आपके भी नेटवर्क इश्यूज होंगे। एनीवे दर्शन, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अभी नेटवर्क इश्यू नहीं है ना? सर ये जो स्लाइड है वही शो नहीं हो रही थी आपका। अभी शो हो रही है? नहीं हो रही है सर, ब्लैक, एकदम ब्लैकआउट आ रहा है। ब्लैक हो रही है? बाकी स्टूडेंट्स को राहुल, प्रियदर्शनी, स्लाइड शो हो रही है? नहीं सर, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है सर, अभी नहीं हो रही। थोड़ी फिर देर आप वापस। तो आप लोग बताया करो ना, जब मैं पूरी क्लास खत्म करने समझा देता हूँ उसके बाद आप बोल रहे हो। अभी क्लियर है? अभी क्लियरिटी है? सर अभी। और नेक्स्ट टाइम से मैं क्या करूंगा, जिस स्लाइड में डायग्राम होगा ना, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा पहले से, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है? सर हाँ, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, बिकॉज वी आर दिस इज न्यू फॉर ऑल ऑफ अस। ऑनलाइन क्लासेस आर न्यू फॉर ऑल ऑफ अस, and you are more friendly with technology, I am less friendly, so you can guide me or you can advise me whatever you are feeling. My purpose is to communicate maximum. जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आपको समझ में आए, that is my only aim. मैं ज्यादा पढ़ा दूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें पढ़ा दूं, उससे नहीं मीनिंग है। सिंपल पढ़ाऊं, इजी वे में पढ़ाऊं, ताकि आपको उतना समझ में आए। अभी आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा ये डायग्राम? यस सर, दिखाई दे रहा है सर। ठीक है, तो मुझे लगता है इसको एक्सटेंड करने की वजह से भी थोड़ी क्लियरिटी कम हुई है। तो आप देखें यहाँ पर
चलो कोई जो जिसको दिखाई नहीं दिया है उनको छोड़ दे, जिनके नेटवर्क इश्यू था। कौन एक्सप्लेन करेगा? अब्दुल राजा, कैन यू एक्सप्लेन? सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, अब दे रहा है सर। ओके, प्रियदर्शनी। केवल 3-4 पार्ट मैंने एक्सप्लेन किए हैं। डायग्राम तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अगर आप लोगों तक नहीं पहुंच रहा है या आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आपको बोलना चाहिए। कोई बात नहीं, आज नहीं बोला, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कम्युनिकेट करें, ठीक है? इवन आप ग्रुप में मैसेज डाल दें तो मैं मोबाइल पर अपने ग्रुप में मैसेज भी देखता रहूंगा, ठीक है? यस, प्रियदर्शनी, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन इट? Yes, sir. यस। Yes, sir. A और B टैप होता है तो, और बटन साफ होता है, बटन साफ से टैप कनेक्ट होता है, और B और ये थ्रेडल लीवर होता है, F फुलक्रम पॉइंट जिसमें B और F थ्रेडल वो कनेक्ट होते हैं। फुलक्रम के हिसाब से ये दोनों मूव करते हैं। ये आवाज आपकी भी नेटवर्क की वजह से कट कट के आ रही है, बट कोई बात नहीं, स्टिल मैं समझ पाया हूँ। सो आई एम अगेन रिपीटिंग। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है सबको? Yes, sir. ओके, सो हियर सी इज द बॉटम शाफ्ट। लूम पर 2 शाफ्ट होती है, वन इज नोन एज क्रैंक शाफ्ट, अनदर इज बॉटम शाफ्ट। मेनली 2 शाफ्ट होती है और कभी कभी हम ऑक्सिलरी शाफ्ट यूज करते हैं। उसके बाद उसको अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अभी 2 शाफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो बॉटम शाफ्ट, first thing should be clear, tapered shedding mechanism is getting motion from bottom shaft. Few mechanisms are operated by crankshaft, few mechanisms are operated by bottom shaft. So tapered shedding mechanism is operated by bottom shaft. And if it is operated by bottom shaft, it means whatever the selection is done, that is done for 2 picks. 2 picks के लिए काम कर, 2 picks के लिए एक बार में एक रिवॉल्यूशन पे काम करेगी। तो बॉटम शाफ्ट के एक रिवॉल्यूशन में 2 पिक जितना वर्क आउट हो जाएगा, 2 पिक का काम हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 2 पिक्स के लिए वापस ये वर्कआउट करेगी। सो हियर यू कैन सी इट इज बॉटम शाफ्ट एंड दीज 2 टैपेट्स आर माउंटेड which are having special type of profile और special type of shape according to डिजाइन के अकॉर्डिंग होगा उसका, ठीक है? और ये जो टैपेट्स हैं दोनों, आप देखेंगे इनका शेप इस तरह से है कि आप देखो इस टैपेट को अगर देखो ध्यान से, तो ये जो बॉटम शाफ्ट है यहाँ इसका बहुत स्मॉल प्रोफाइल यहाँ पर है, और ये जो जगह है, ये जो लोकेशन है इस टैपेट की, वो बॉटम शाफ्ट से बहुत दूर है। और ये जो है, ये वाला पार्ट है, ये बिल्कुल पास में है। आप देखेंगे ग्रेजुअली द डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम शाफ्ट इज इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग। सिमिलरली इसके कंपैरिजन में आप देखेंगे तो ये नियरेस्ट वाला पेरिफेरी है, फिर ये पेरिफेरी दूर होता जा रहा है, और ये सबसे डिस्टेंस पर है, और फिर वापस ये कम होता जा रहा है। ये शेप होता है प्लेन व्यू के लिए, ये सबसे नजदीक है, ये सबसे दूर है, 1 अप 1 डाउन के हिसाब से, ठीक है? और इस टैपेट के कांटेक्ट में यहाँ पर ये एंटी फ्रिक्शन बॉल हमेशा इसके कांटेक्ट में रहेगी, और ये जो एंटी फ्रिक्शन बॉल है ये हमेशा इस टैपेट के कांटेक्ट में रहेगी। यानी कि एक एंटी फ्रिक्शन बॉल एक टैपेट के साथ में, जस्ट लाइक दे आर connected with each other, they are in touch with each other, they are not fixed, they are in contact with each other with this periphery. ये जो एंटी फ्रिक्शन बॉल है हमेशा इस पेरिफेरी के कांटेक्ट में रहेगा, ये एंटी फ्रिक्शन बॉल है हमेशा इस पेरिफेरी के कांटेक्ट में रहेगी। और जो एंटी फ्रिक्शन बॉल्स हैं वो इन लीवर्स के ऊपर फिक्स्ड है, जिसको हम ट्रेडल लीवर्स बोल रहे हैं। ये ट्रेडल लीवर्स होते हैं, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट पार्ट्स में भी लिया था ट्रेडल लीवर्स। ये ट्रेडल लीवर्स होते हैं टैपेट शेडिंग मैकेनिज्म के साथ में। तो इस वाले पे लग रहा है ये एंटी फ्रिक्शन बॉल, और इस ट्रेडल लीवर पर लग रहा है ये एंटी फ्रिक्शन बॉल। जो डी से इंडिकेट किया हुआ है उस पर कौन सा है? आर, और जिसको हमने ई से इंडिकेट कर रखा है ट्रेडल को, उसके ऊपर एस वाला एंटी फ्रिक्शन बॉल फिक्स है, ठीक है? और एंटी फ्रिक्शन बॉल आर ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विद वन टैपेट। दिस एंटी फ्रिक्शन बॉल एस इज इन कॉन्टेक्ट विथ
which tappet? This one, which is indicated by B. थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा B. और ये जो एंटी फ्रिक्शन बाउल है जो कि हमने R से इंडिकेट कर रखा है, R से इंडिकेट किया हुआ, ये हमेशा कांटेक्ट में है एंटी फ्रिक्शन बाउल, इसलिए टैपेट A, और C जो इंडिकेट कर रहा है बॉटम शाफ्ट को। ये जो लोअर पार्ट है इस मैकेनिज्म का। अब आप आ जाएं अपर पार्ट के अंदर। अपर पार्ट में आप देखेंगे बीच में अगेन एक डार्क पार्ट दिखाया हुआ, दैट इज इंडिकेटेड बाय Q, एंड Q इज टॉप रिवर्सिंग रोलर शाफ्ट। ये टॉप रिवर्सिंग रोलर की शाफ्ट है, और जो ये अंदर जो रोलर दिखाया हुआ है इसको भी हम टॉप रोलर बोलते हैं, और जो बाहर की तरफ रोलर दिखाया हुआ है उसको हम टॉप रोलर बोलते हैं। यानी कि 2 टॉप रोलर्स आर देयर एंड बोथ आर ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स। दोनों के डायमीटर अलग अलग हैं, ये स्मॉलर डायमीटर, दिस इज बिगर डायमीटर। सो 2 rollers are mounted on same shaft. This shaft is known as top reversing roller shaft, and these rollers are known as top rollers. जो small है उसको smaller top roller बोलते हैं, जो larger है उसको larger top roller बोलते हैं। और इनको हमने इंडिकेट कर रखा है, टॉप रिवर्सिंग रोलर को P से इंडिकेट किया हुआ है, एंड टॉप रिवर्सिंग रोलर शाफ्ट को Q से, और टॉप रिवर्सिंग रोलर जो स्मॉलर डायमीटर का है उसको N से। N अंदर वाले को इंडिकेट कर रहा है, P बाहर वाले को इंडिकेट कर रहा है, और अंदर जो शाफ्ट है जिसके ऊपर ये दोनों लगे हुए हैं उसको हमने Q से इंडिकेट कर रखा, उसको बोलेंगे टॉप रिवर्सिंग रोलर शाफ्ट, बिकॉज दीज आर टॉप रिवर्सिंग रोलर। जिन शाफ्ट पे लगे हुए हैं उनको टॉप रिवर्सिंग रोलर शाफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो और इन दोनों के डायमीटर में डिफरेंस है। सिमिलरली दोनों टैपेट्स के प्रोफाइल में डिफरेंस है। जो टैपेट बैक हिल फ्रेम को कंट्रोल कर रहा है, जो टैपेट बैक हिल फ्रेम को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि ये वाला, ये टैपेट, इसके ये जो टैपेट है इसका प्रोफाइल थोड़ा सा बड़ा होता है, लार्जर होता है एज कंपेयर टू प्रोफाइल ऑफ दिस वन, जो कि फ्रंट हिल फ्रेम को कंट्रोल कर रहा है। सिमिलरली फ्रंट हिल फ्रेम को जो कंट्रोल कर रहा है टॉप रिवर्सिंग रोलर, वो स्मॉलर होता है, इसलिए आप देखेंगे देखो फ्रंट हिल फ्रेम कनेक्टेड है अंदर वाले से, और जो बैक हिल फ्रेम है आप देखेंगे बाहर वाले से कनेक्टेड है, मींस लार्जर डायमीटर टॉप रिवर्सिंग रोलर से कनेक्ट है। तो बैक हिल फ्रेम लार्जर डायमीटर टॉप रिवर्सिंग रोलर के कांटेक्ट में है, और बिगर प्रोफाइल टैपेट के कांटेक्ट में है। दोनों टैपेट आपको इक्वल दिख रहे होंगे, लेकिन ये इक्वल नहीं है, दोनों के प्रोफाइल में डिफरेंस है। दिस इज स्मॉलर वन एंड दिस इज लार्जर वन। लार्जर वन कौन सा होगा? लार्जर वन ये वाला होगा जो कि बैक हिल को कर रहा है। बैक हिल को कौन सा कर रहा है? ये एंटी फ्रिक्शन बॉल, यानी कि ये टैपेट। तो जो टैपेट बी पर इंडिकेट किया दिस इज लार्जर प्रोफाइल, जो ए पे इंडिकेट किया वो स्मॉलर प्रोफाइल, और बैक हिल्ड जिस टॉप रोलर से कनेक्टेड है वो लार्जर डायमीटर, और फ्रंट हिल्ड जिससे कनेक्टेड है वो स्मॉलर डायमीटर टॉप रिवर्सिंग रोलर है, और दोनों एक शाफ्ट पे लगे हुए, इसको टॉप रिवर्सिंग शाफ्ट बोलते हैं। तो ऊपर का पार्ट ये हो गया, नीचे का पार्ट ये हो गया, बीच में आप देखें दिस इज पैसेज ऑफ वार्प, जो हम ऑलरेडी कर चुके लूम पे। ये वार्प, यहाँ पे वार्प दिखाया हुआ है जो कि कहाँ से आ रहा है? रिवर्स बीम से बैक रेस्ट पे होता हुआ ये वार्प आ रहा है। ये वार्प थ्रेड्स की पैरेलल शीट आ रही है, और जिसमें नंबर ऑफ एंड्स होंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, एंड दीज आर 2 लीज रोड्स, वन फर्स्ट लीज रोड, सेकंड लीज रोड, और फिर लीज रोड के बाद में यहाँ पे हमने हिल फ्रेम्स दिखाई हुई है। दिस इज फ्रंट हिल फ्रेम, दिस इज बैक हिल फ्रेम। ये फ्रंट हिल फ्रेम है जिसकी यहाँ पर आई दिखाई हुई है, और ये बैक हिल फ्रेम है जिसकी आई यहाँ पे दिखाई हुई है। ये फ्रंट हिल फ्रेम है और ये बैक हिल फ्रेम है। बैक हिल फ्रेम को हमने के से इंडिकेट किया है, और फ्रंट हिल फ्रेम को किससे किया है? जे एंड के आर हिल फ्रेम्स। सो लेटर इसमें क्लियर नहीं है। दिस इज इंडिकेटिंग, दिस इज जे फ्रंट हिल फ्रेम एंड दिस इज के बैक हिल फ्रेम। और ये जो है फ्रंट हिल फ्रेम की एक हिल्ड वायर की आई दिखाई हुई है, जिसको हमने इंडिकेट किया हुआ है टी और यू से। दिस इज टी एंड दिस इज यू। ये फ्रंट हिल फ्रेम के वायर की आई है, और ये बैक हिल फ्रेम के वायर की आई को यहाँ इंडिकेट किया हुआ है। और आगे आप देखेंगे यहाँ पर वेफ्ट शो कर रहे हैं। वेफ्ट इज इंडिकेटेड बाय वी, जो वेफ्ट शेड के थ्रू पास हो रहा है, पिकिंग हो रही है, दैट इज इंडिकेटेड बाय वी, एंड वाई इज इंडिकेटिंग क्लॉथ। तो ये थर्ड पार्ट हो गया इस मैकेनिज्म का,
जहाँ पे हमने वाट का पैसेज शो किया हुआ है, हिल फ्रेम शो की हुई है. बेसिकली वी वांट टू शो द हिल फ्रेम्स. ये हिल फ्रेम को ही हमें ऑपरेट करना है. एंड नाउ दीज हिल फ्रेम्स आर कनेक्टेड विद दिस स्मॉलर टॉप रिवर्सिंग रोलर with the help of this leather strap L, और टॉप जो लार्जर डायमीटर रोलर है उससे कनेक्टेड है बैक हिल फ्रेम का अपर पार्ट विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रेप M. ये लेदर स्ट्रेप M हिल फ्रेम के अपर पार्ट को लार्जर डायमीटर टॉप रिवर्सिंग रोलर से कनेक्ट कर रहा है, और ये जो फ्रंट हिल फ्रेम है ये कनेक्ट हो रही है स्मॉलर डायमीटर दिस टॉप रिवर्सिंग रोलर से विद द हेल्प ऑफ लेदर स्ट्रेप. दोनों तरफ लेदर स्ट्रेप जो है हिल फ्रेम को टॉप रिवर्सिंग रोलर से कनेक्ट कर रहे हैं. फ्रंट हिल फ्रेम स्मॉलर डायमीटर वाले रोलर से कनेक्ट है, और ये बिगर डायमीटर लार्जर डायमीटर के रोलर से कनेक्टेड है. सिमिलरली आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर लैम्ब रोड शो की हुई हमने, लैम्ब रोड G, जो कि इस ट्रेडल से कनेक्ट कर रही हिल फ्रेम के लोअर पार्ट को, और ये लैम्ब रोड यहाँ पर जो हमने शो कर रखा है लैम्ब रोड, दिस इज W. तो W जो है वो क्या शो कर रही है, सॉरी W तो लीज रोड थे, लैम्ब रोड को हमने शो किया हुआ है G and H. या दिस इज G and दिस इज H. वेरी गुड. सो H कनेक्ट कर रही इस ट्रेडल से इस हिल फ्रेम को. तो हिल फ्रेम ट्रेडल से कनेक्ट किससे है, विद द हेल्प ऑफ लैम्ब रोड्स. G या H कुछ भी हो, नाम कुछ भी दे सकते हैं. ये दोनों लैम्ब रोड्स हैं जो इस तरह से दिखाया हुआ है, ये पार्ट ये लैम्ब रोड्स हैं, यानी कि ये कनेक्टिंग अरेंजमेंट है. तो लैम्ब रोड्स हिल फ्रेम के लोअर पार्ट को ट्रेडल से कनेक्ट करती हैं, और लेदर स्ट्रेप्स हिल फ्रेम के अपर पार्ट को टॉप रिवर्सिंग रोलर से कनेक्ट करता है. दिस इज कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ दिस मैकेनिज्म. वी हैव लेस देन 1 minute, so we will cover working and again the construction part in the next class tomorrow. Thank you so much. If you have any question, you can ask right now, or you can ask in the beginning of the next class. Okay? Yes, sir.